technology, and though a lot is more of a relative term, तो हम लोग but still we have taken up projects, हम लोगों ने नए subjects लिए हैं, नई branches ली हैं, बच्चे अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, we have got number of lectures and काफी लोगों ने अच्छा करा है, स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आई है, so I'm sure कि आज आप जो बताएंगे that will be very useful, and not only in pure academic form, but students will implement it in their project, in their presentation, and try to learn in that direction. Lecture की meaning I always keep telling तभी होती है जब आप उसको properly attend करें, notes बनाएं, और वो तो एक direction definitely आपको चलना है. If we have somebody of Rohit's level experience, so that is the expectation. आप सारे लोग properly ढंग से attend करें and इसको best you this is the thing. Sir, please continue with your lesson. One of my colleagues over in the session, and the name of my colleague is HR_Softpro. Okay, sir. आप unmute कर लीजिए sir, HR_Softpro. Okay. Video off है sir. Thank you, sir. A very good afternoon to everyone. Just give me a minute, please. स्क्रीन सर आप शेयर कर सकते हैं HR से. So it says a host has disabled participant screen sharing. allow है enable कर दिया, start करना. Okay. Thank you so much. PPT सर visible है, आप start कर सकते हैं. Yep. Welcome everyone to today's webinar. My name is Anirudh. I am the manager HR and operations from Softpro India. And before we begin with the session, I will quickly just walk you through the company's profile and everything about it. So this will help you get a glimpse of what Softpro does and why you should be trained under Softpro's webinar by Softpro's CTO. So I would like to first of all thank you, the college's management, for giving us this opportunity, and all the students today who have joined us. So Softpro Group of Companies is a company that was founded by technocrats from IIT Kanpur and IIT Lucknow. And the main vision of the company was bridging the technology gap. You all know that there is a gap between a student and a professional, right? And here at Softpro, we make sure that we make the student go through the changes and the processes that are required to begin their journey into their professional lives. And that's what we do at Softpro. So welcome to the world of technology. Quickly, I will tell you about our presence. We have the headquarters of Softpro, that is Softpro Tower in Lucknow. We have the headquarters of our training division, that is Softpro House in Lucknow. We also have the headquarters of Polyprep in Lucknow.
We have a virtual office that operates from Malaysia, and we have an operations office in Malawi, South Africa as well. We are planning to grow more and expand more in the coming years. Telling you about the infographic start of SoftPro, you can see in the year 2004, SoftPro India Computer Technologies was established, which is the software development wing of SoftPro. 2008, we came with SoftPro Learning Center, which is a training division of SoftPro. In the year 2014, SoftPro's research and development division was established by the name of SoftPro Innovations. In the year 2014, we came with a very different, very unique wing of SoftPro that is into agro products division, which is called SoftPro Foods. And last year, in the year of pandemic, the experts of SoftPro came with PolyPrep. I will tell you quickly about PolyPrep in the coming slides as well. Telling you about the SoftPro's founder, Engineer Ajay Chaudhary sir. Engineer Ajay Chaudhary sir completed his BTech from IIT Lucknow. He worked in several companies and several countries. He carried an experience of 25 plus years by working in, of course, India, South Africa, Kenya, Tanzania, Singapore, Malaysia, and many other places as well. After gathering all this experience, Sir Ajay Chaudhary came to Lucknow. Now he came back to Lucknow because he wanted to give the people of Lucknow what they did not have at that point of time. He wanted to give the people of the nearby regions what they deserve. And this idea of Sir Ajay Chaudhary gave birth to SoftPro Group. Sir Ajay Chaudhary is the managing director and chairman of SoftPro Group. Apart from that, he is also the member of the Academic Council of IIT Lucknow, member of the Board of Technical Education of IIT Lucknow, member of the Board of Studies of Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Ayodhya as well. He is also the former member of the Academic Council of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, that is AKTU Lucknow. The leadership team of SoftPro, the creators and innovators has Ms. Yashi Asthana, the Chief Executive Officer of SoftPro India, Engineer Brijesh Mishra sir, the Senior Manager IT in SoftPro Group, and Mr. Rohit Kumar, the Chief Technical Officer of SoftPro. These are the pillars of SoftPro which drive SoftPro into achieving new milestones of success. We also have a team of experts, people who carve SoftPro into a better version of itself, and people who help SoftPro achieve new things, new accomplishments, and new pathways to drive in. We also have consultants on every domain, be it any branch of engineering, CS, IT, EC, EE, civil, mechanical, be it any domain, technical or non-technical, we have experts on that. And this vast variety of our experts have made us the largest learning center of the whole region. I will quickly tell you about a very proud achievement of SoftPro. The government of Uttar Pradesh, the Board of Technical Education, awarded SoftPro with the Vishisht Pratibha Samman Award in the year 2019. Because in the year 2019, SoftPro broke all the placement records of Uttar Pradesh, and we placed 120 students from all over the state. And thus, we were awarded with the Vishisht Pratibha Samman Award. We provide the students with training programs like summer training, vocational training, industrial training, and winter training as well under SoftPro House. That is a learning center of SoftPro. These trainings are project-based, and the students get live projects on which they get hands-on experience. Recently, we also signed an MOU and Memorandum of Understanding with the Department of Technical Education, under which the DTE government of Uttar Pradesh has chosen SoftPro to be their training partner for all the coming programs of the colleges of Uttar Pradesh, be it webinars, workshops, seminars, free courses, summer trainings, winter trainings. SoftPro is an authentic training partner by DTE. This is a huge news which is coming up right now. This is a glimpse of summer training at SoftPro House. When the trainings were offline, SoftPro House में every year 2000 से 3000 students आते थे और summer training complete करते थे. SoftPro House consists of halls for their summer training, and ऐसे ही 12 से 15 classes SoftPro House में हर साल चलती थी. Apart from this, we also provide industry academy interaction programs, under which we provide webinars, seminars, workshops, guest lectures, and faculty development programs in every college of the region. Every year, we conduct 200 to 250 industry academy interaction programs. Now, I will tell you about PolyPrep, which
came up last year. I told you in the year 2020, software experts came with PolyPrep. So PolyPrep basically is an artificial intelligence-based learning management system of software. Last year, when the pandemic happened, when the schools, colleges, and universities were closed, there was no mode of offline studies. The experts of software came with PolyPrep. So PolyPrep is a learning management system. It is a student portal that a student gets. So if you're registered with PolyPrep, you won't only be completing your course with a live Zoom link and get your password. And once you log in into PolyPrep for the course, you will get several features like course content by software experts. You get self-assessment tools, that is assignments and quizzes, all the video library containing vast lectures, and the best thing is all the class self, the student can write their queries in the chat box and they will be answered like a live class. Through PolyPrep, our aim was to minimize the difference between offline and online class, and that is what we did, because that feedback is what we received from the technologies, online summer trainings, online preparation of syllabuses, and online workshops. And all these courses, all these PolyPrep are certificate-based, and the certificates are globally accepted. In 1 year, since 2020, 10,000 students for the country have completed their training certified on trending technologies by software from software, which will be training the students are experts. And today's the expert, as you all know, is a chief officer of India. Sir was surprised that a chief technical officer is so young, and it all comes with the experience. So to shower you all with his experience of working for several experience of web technologies, here is your trainer for today, Rohit Kumar sir. So I hand over the session to Rohit sir. Thank you, everyone. Thank you for your brief introduction of your company. It's very good to note that you have a vibrant organization. Now we can take it forward. रोहित सर आप अनम्यूट कर लीजिए. Yes. So hello and welcome to the webinar organized by your college VIT Kanpur and Aligarh, and thank you Anirudh for the warm welcome and the company profile presentation. Thank you Vishal sir, thank you Mohammad Rehan sir कि आपने इतना अच्छा एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए. और मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चों की क्वेरीज हैं IoT से रिलेटेड, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड उनकी जो दिमाग में क्वेरी चलती है कि हम कैसे जॉब कर पाएंगे, हम कैसे इंडस्ट्री के काबिल बन पाएंगे, तो वो सारी चीजें मैं उनके इस कुछ जो देर आपने जो हमें सेशन दिया है उसमें हम इसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. सो first of all, I'm sharing my screen and I'm sharing a PPT. Software India organizes a webinar. First of all, आपसे मेरी थोड़ी जान पहचान हो जाए कि रोहित सर जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताने आए हैं, वो हैं कौन. So my dear friends, a picture tells everything. A glimpse of inauguration of ICE project in CMO लखनऊ by Honorable Chief Minister. आप देख रहे होंगे कि मेरे द्वारा बनाया गया एक प्रोजेक्ट जो कि जिसको कि इनॉग्रेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था. और ये प्रोजेक्ट पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावी और सबसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट का अवार्ड भी इसमें मिला है.
क्योंकि इसमें पूरे प्रदेश के पॉलिटेक्निक के, ITI के ऑलमोस्ट 20 लाख बच्चे रोजाना लॉगिन करते हैं और रोजाना पढ़ाई कर रहे हैं। एक ऐसा पोर्टल पूरे प्रदेश में बना जिसमें 20 लाख स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन 2020 every year AICTE organizes a hackathon। आपने सुना होगा AICTE हर साल हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करती है और उसमें 2 एडिशन होते हैं, एक सॉफ्टवेयर का एडिशन होता है, एक हार्डवेयर का एडिशन होता है। तो आई एम अ जज इन 2020 सॉफ्टवेयर एडिशंस ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। मुझे सेलेक्ट किया गया, पूरे देश से 400 लोग यहाँ सेलेक्ट होते हैं जज बनने के लिए। तो 400 में मैं भी एक जज था और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे जो टीम मुझे दी गई थी उस टीम में से 4 टीमों में से 3 टीमों को फर्स्ट अवार्ड मिला था। 3 टीमें रैंक 1 पे आई थी और उसमें से एक टीम का प्रोजेक्ट IoT बेस्ड था। तो आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता लग रहा होगा। I am having an experience of more than 8+ years in working in the field of software development and database in software development, and I have a great command in programming languages and database administration. अब सर ने जैसे कहा, विशाल सर से अभी जो बात हुई, तो विशाल सर ने कहा कि सर आप काफी यंग लग रहे हो। सर यंग हूं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ मुझे इस कंपनी में इतना बड़ा पोस्ट मिला। मैंने कंपनी के छोटे प्रोजेक्ट से जर्नी शुरू करी, एक छोटे कुर्सी, एक छोटे सीट से जर्नी शुरू करी थी। आज मैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर हूं। इसका सबसे बड़ा कारण है मेरे क्लाइंट्स। जिस भी क्लाइंट के लिए मैंने काम किया, वो गवर्नमेंट के क्लाइंट थे, वो प्रेस्टिजियस नेशनल रिक्रूट के क्लाइंट थे। जैसे आपके सामने कुछ नाम मैंने लिखे हैं, ग्रीन गैस लिमिटेड। क्योंकि आप आगरा और कानपुर शहर को या लखनऊ शहर को बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो लखनऊ शहर, आगरा और कानपुर में CNG जो देने का काम करती है, उस कंपनी का नाम है ग्रीन गैस लिमिटेड। एक ग्रीन कलर का लोगो आता है उसके पेट्रोल पंप पे, वो लोगो भी मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। एंड द ग्रीन गैस लिमिटेड इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ गेल एंड IOCL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एक ज्वाइंट वेंचर था। दोनों एक साथ आके इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हम CNG सप्लाई करते हैं। और इसका जितना ऑटोमेशन का काम है, पिछले 11 सालों से इसके ऑटोमेशन का काम हम लोग देख रहे हैं, हमारी कंपनी के पास है। और पिछले 9-8 सालों से मैं इस प्रोजेक्ट को देख रहा हूं। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। मार्क लेबोरेटरीज पूरे वर्ल्ड में ये मेडिसिन सप्लाई करती हैं, ये फार्मास्यूटिकल की एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसका पूरा का पूरा ERP मैंने डेवलप किया। करम इंडस्ट्री, अगर आप करम इंडस्ट्री के बारे में सोचेंगे तो मैं आपको इसकी पूरी जर्नी आपको करम के बारे में बताऊंगा। करम इंडस्ट्री इज अ 1000 करोड़ कंपनी एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज PN इंटरनेशनल। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसको। पूरे वर्ल्ड में इसके 200 से ज्यादा ऑफिसेस हैं, 200 से ज्यादा ऑफिसेस हैं। और यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी IoT से रिलेटेड काम करने की। मैं इसके बारे में आपको एलोबरेट करूंगा, आपके टॉपिक से रिलेटेड बात है, इसलिए आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे तमाम सारे प्रोजेक्ट मैंने बनाए और इन प्रोजेक्ट के काम करने से जो मेरा एक्सपीरियंस गेन हुआ वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। अब आते हैं सीधा टॉपिक पे, IoT। जैसा कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आज बहुत सारे IoT के एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं। IoT के बहुत सारे एप्लीकेशंस आपने मार्केट में देखे होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज IoT। IoT है क्या? तो तमाम तरह के आंसर्स आप जब IoT के फिल्टर करोगे, आपको गूगल का जो पहला आंसर है वही मैंने भी यहां रखा है। तमाम तरह के आंसर्स देखने के बाद मुझे पता चला कि ये आंसर सबसे ट्रस्टवर्दी है। इस आंसर को आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इंटरनेट थिंग IoT describe the world of physical objects things that are embedded with sensors, softwares and other technologies for the purpose of connecting and exchanging of the data. My dear friend, हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें कुछ हार्डवेयर इन्वॉल्व हो, कुछ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हो, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हो, और जिससे हम क्या कर सकते हैं,
एक्सचेंज कर सकते हैं डेटा का, लेकिन थ्रू इंटरनेट। थ्रू इंटरनेट हमें ये डेटा का एक्सचेंज करना है। द नेम कम्स फ्रॉम इंटरनेट, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट के जरिए हम कुछ हार्डवेयर को कनेक्ट करें, कुछ सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करें, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कनेक्ट करें और हम डेटा का एक्सचेंज कर पाए। द मेन थिंग ऑफ IoT। And another definition, all IoT devices embedded with software, hardware and network connectivity। आपको अगर कोई IoT बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है तो इसमें आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी? सॉफ्टवेयर एक चाहिए होगा, एक हार्डवेयर चाहिए होगा और कहीं ना कहीं हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी चाहिए होगी। आप IoT के आर्किटेक्चर को ध्यान से देखें, IoT के आर्किटेक्चर को ध्यान से देखें। आप अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं अपना, अगर आप कोई स्टूडेंट इसमें से एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है IoT आर्किटेक्चर को, IoT बेस्ड एप्लीकेशन को। और IoT बेस्ड डिवाइस बनाने के लिए आपको किन चीजों की क्या आर्किटेक्चर फॉलो करना होगा? आपको एक IoT का गेटवे यूज करना होगा, आपको कुछ डिवाइसेस, कुछ सेंसर्स, कुछ मोटर्स, कुछ ऐसे डिवाइसेस, हार्डवेयर कनेक्ट करने होंगे इससे जो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को IoT गेटवे के थ्रू हमें क्लाउड पे स्टोर करना होगा। उन इंफॉर्मेशन को जो हमने डिफरेंट सेंसर्स, डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू गैदर किया है, एक जगह कलेक्ट किया है, IoT गेटवे के थ्रू हम उसको कहां नेविगेट करते हैं? क्लाउड पे नेविगेट करते हैं। और क्लाउड से डिफरेंट तरह के यूजर्स, वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन के यूजर हो, वो IoT डिवाइस यूजर हो, वो लैपटॉप से भी यूजर हो, वो सारे यूजर्स उसको कनेक्ट करके यूज कर पाते हैं। तो दिस इज द IoT आर्किटेक्चर। एंड एनी ऑफ द IoT प्रोजेक्ट, एनी ऑफ द IoT एप्लीकेशन, हम अगर कोई सा भी IoT एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें इस आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा कम्युनिकेटिव बनाते हैं उसको वेबिनार को। कम्युनिकेशन का मतलब कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आए वो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ पाए। कम्युनिकेशन इज अ वर्ड जिसका मतलब ये होता है कि व्यवहार, विचारों का आदान प्रदान। तो जब तक आप अपने क्वेश्चन मुझे नहीं बताओगे, जब तक आप अपनी क्वेरीज मुझे नहीं बताओगे, मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा कम्युनिकेटिव बनाते हैं। 142 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, 142 बच्चे हैं हमारी क्लास में, तो हम इसको इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो आप चैट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन, जब भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। IoT का एक और आर्किटेक्चर मैं आपको दिखाऊं। आप देख रहे होंगे जो आर्किटेक्चर मैंने पीछे की स्लाइड में आपको दिखाया कि एक क्लाउड गेटवे का यूज होता है, एक हम जहां पे क्लाउड गेटवे से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन यूजर उसको एक्सेस करता है, हम एक गेटवे का यूज करते हैं, और सबसे नीचे बहुत सारे IoT बेस्ड एप्लीकेशंस, हार्डवेयर, सेंसर्स, मोटर्स, एक्चुएटर्स, डिवाइसेस का यूज करते हैं। और अच्छा समझने के लिए एक एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया, स्मार्ट ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट है। स्मार्ट ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट है एक हमारा मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ बिल्कुल, मैकेनिकल इंजीनियर, अभी आ रहा हूं आपके टॉपिक पे भी आ रहा हूं नीलेश, बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी मैकेनिकल इंजीनियर्स के टॉपिक पे आऊंगा कि कैसे मैकेनिकल इंजीनियर IoT बेस्ड एप्लीकेशन को बना सकता है और कैसे फ्यूचर में ग्रो कर सकता है IoT के साथ। सबसे पहले आपको IoT के साथ एक क्लाउड सर्वर का यूज करना पड़ेगा, और आजकल मार्केट में बहुत सारे क्लाउड सर्वर हैं, बहुत सारे क्लाउड सर्वर हैं जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ डेटा का मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे क्लाउड सर्वर हैं। क्या फायदा है क्लाउड सर्वर्स का? वही क्लाउड सर्वर्स आर यूज्ड, व्हाई नॉट हम कोई दूसरा सर्वर यूज करें, हम कोई डेडिकेटेड सर्वर यूज करें, हम कोई डेडिकेटेड IP यूज करें, उससे अच्छा है क्लाउड सर्वर। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बहुत कम होती है, स्केलेबिलिटी मतलब डेटा का एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, और इसको इंटीग्रेट करना अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपने एप्लीकेशन के साथ बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान।
बहुत तरह के आपने नाम सुने होंगे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के, बहुत तरह के नाम सुने होंगे। जैसे अमेजॉन का नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज का, माइक्रोसॉफ्ट का अजूर एक टेक्नोलॉजी है, गूगल IT कोड है, IBM का क्लाउड है, और सबसे ज्यादा जो हम स्टूडेंट्स यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड थिंगस्पीक। सबसे ज्यादा जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है वो है थिंगस्पीक। यहाँ पे आपको बस सिर्फ जाके रजिस्टर करना होता है, एक अकाउंट क्रिएट करना होता है अपना, और आप क्लाउड पे अपना स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। thingspeak.com इसका जो वेबसाइट का URL है वो है thingspeak.com। आप गूगल पे थिंगस्पीक टाइप करेंगे और आप थिंगस्पीक की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो वो आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एयर फ्लो। ओके ओके ओके, आ रहा हूं आपके भी क्वेश्चन पे आ रहा हूं हाशिम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एयर फ्लो सेंसर किसे कहते हैं एंड पर्पस क्या होता है इसका। व्हाई वी शुड केयर अबाउट IoT। हम IoT ऐसी चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसका केयर क्यों कर रहे हैं। हमारे सिस्टम ने हमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई हैं। अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आपके कोर्स ने, आपके सिलेबस ने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको दी है। लेकिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप नाम बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे जो सब में पढ़ाया जा रहा है, जो सबके स्ट्रीम में, चाहे वो मैकेनिकल का हो, चाहे वो सिविल का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का हो। क्या आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बता सकते हैं? यस, अपूर्वा ने बिल्कुल सही आंसर दिया, पाइथन। तो अपूर्वा, क्या आप बता सकती कि पाइथन हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? और 4-5 सालों से आपने देखा होगा इंडस्ट्री का टेस्ट चेंज हो गया है। ओपन सोर्स, नीलेश ने कहा ओपन सोर्स है सर, इसलिए भाई नीलेश जी, अगर ओपन सोर्स की बात करें तो एंड्रॉइड इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, PHP इज एन ऑल्सो एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, because it is all rounder, because it is easiest language, easy to understand। सबका आंसर सही है। सिक्योर है पाइथन, सिंपल लैंग्वेज है, हैज ऑन डिक्शनरी, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट बिकॉज ऑफ राइज इन ML एंड IoT टेक्नोलॉजी। बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, फ्री फ्रॉम बायस, बहुत सारे आंसर्स आए और सारे आंसर बिल्कुल सही हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ये 4-5 सालों में पाइथन लैंग्वेज डेवलप की गई है? क्या आप बता सकते हैं? तो पाइथन कब डेवलप हुआ, पाइथन कब आया इंडस्ट्री में? 1981? नो अतुल, गलत आंसर है। 2003 नेहा, गलत। 1989 गलत। 1991, बहुत अच्छा शिवम। मैं आपको पूरी पाइथन की हिस्ट्री बता दूं। पाइथन आई थी 1989 में, पाइथन आई थी 1989 में, बट इसका जो फर्स्ट रिलीज था यूजर्स के लिए, हमारे आपके लिए जो पहला रिलीज आया था वो 1991 में आया था, वो 1991 में आया था माय डियर फ्रेंड्स। अब आप सोचिए, इतनी पुरानी लैंग्वेज, जावा से भी पुरानी लैंग्वेज है ये। जावा इन द ईयर 1995 डेवलप हुई थी, तो ये जावा से भी पुरानी लैंग्वेज है। पॉपुलैरिटी देखिए, आज ये पॉपुलर हो रहा है। और अगर आज आप गूगल पे सर्च करें कि टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, टॉप 10 में 1, 2, 3 के अंदर पाइथन आ रहा है। क्या कारण है? तो बहुत सारे कारण मैं आपको बताऊंगा और IoT के साथ उसको एलोबरेट करके बताऊंगा, जिससे कि आपका एप्लीकेशन बनाना आसान हो। और अगर आप बहुत अच्छे से चीजों को समझना चाहते हैं तो मैं लाइव आज आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा IoT बेस्ड एप्लीकेशन का, हाउ टू कंट्रोल अ हार्डवेयर फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर, हाउ टू कंट्रोल अ हार्डवेयर फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर। आप प्रोग्राम बनाओगे, आप लॉजिक लिखोगे और उससे किसी हार्डवेयर को हम कंट्रोल कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाने का सोचा होगा या कुछ लोग उसको बना पा रहे होंगे। मैं आप सब लोगों को सामने आपकी क्लास में ऐसे एप्लीकेशंस बना करके दिखाऊंगा। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? You all guys are ready?
है कुछ अलग। और ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो आपको बहुत सारा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर मैं मैकेनिकल से हूं, क्या मुझे समझ में आएगा, सर मैं इलेक्ट्रिकल से हूं, क्या मुझे समझ में आएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसा एक एप्लीकेशन है, ऐसा एक एग्जाम्पल है जो हम सबको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, आपको टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, क्या आपके कॉलेज में हमसे अच्छे लोग हैं, हमसे क्वालिफाइड लोग काम करते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस होता है कॉलेज के इन्वायरमेंट और एक इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट का। एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो होता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का। वो होता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का। आपके यहाँ भी वही लॉजिक बनाया जाता है, आपके यहाँ भी वही प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, लेकिन हम उस प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिकल अप्रोच से फॉलो करते हैं। जैसे आप सब लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, आप सब लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, और सब लोगों ने कैप्चा देखा होगा। सब लोगों ने कैप्चा कहीं ना कहीं देखा होगा, देखा है, हाँ या ना? अपूर्वा ने कहा यस। क्या कोई बता सकता बिना इंटरनेट का यूज किए हुए, बिना इंटरनेट का यूज किए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैप्चा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैप्चा? ओके ओके, बहुत बढ़िया आंसर। बहुत बच्चों ने एप्लीकेशंस बना रखे हैं, गुड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैप्चा? बिना इंटरनेट का हेल्प लिए मैं आपसे बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। आपको पता करना है ना कि क्या चीजें इनोवेटिव होती है। तो माय डियर फ्रेंड, कैप्चा स्टैंड्स फॉर, मुझे पता है कि बहुत कम स्टूडेंट्स को ये पता होता है, हम लोग यूज करते हैं लेकिन हम उसको सर्च नहीं करते हैं, हम रिसर्च की तरफ नहीं जा पाते हैं। कैप्चा स्टैंड्स फॉर कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। कैप्चा, यस। ब्लॉकचेन को हम लोग आईओटी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं ब्लॉकचेन को, अगर हम लोग प्रोजेक्ट करना चाहें? हाँ सर, उस पे आऊंगा, मेरे आगे की स्लाइड में वो हमने लगा रखा है। ठीक है सर। Why we should care about IoT? अब हम आपके सिस्टम पे आते हैं, आपके प्रेजेंटेशन का पार्ट बनते हैं। हम IoT का केयर क्यों कर रहे हैं, हम IoT बेस्ड एप्लीकेशंस क्यों बनाना चाह रहे हैं माय डियर फ्रेंड? तो IoT एप्लीकेशन का आपको मैं एक नेस्कॉम का सर्वे दिखाऊं, नेस्कॉम का, एंड एस्टिमेटेड 127 न्यू डिवाइसेस, 127 नए डिवाइस हर सेकंड कनेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट से। 127 नई डिवाइसेस हर सेकंड इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। आपको इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाना होगा, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है। आपको अटल थिंकर लैब्स की तरफ जाना होगा, आपको AICTE की तरफ जाना होगा अपने आइडियाज को रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज रजिस्टर हो रहे हैं। और आपके कॉलेज से मैं कहूंगा कि आप लोग किसी भी तरह AICTE के हैकाथॉन का पार्ट बनिए। अगर आपने अपना आइडिया बनाया है, सोचा है, तो उसको इंप्लीमेंट करके हैकाथॉन में दिखाइए। हर साल हैकाथॉन जो विनर्स होते हैं उनको बहुत सारे एक्टिविटीज में बुलाया जाता है, उनके एप्लीकेशन को बहुत सारा लोग सराहते हैं, बहुत सारे लोग उस एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। क्या आपका एप्लीकेशन था नीलेश? सेलेक्टेड टिल फाइनल, क्या आपका एप्लीकेशन था? क्या IoT बेस्ड एप्लीकेशन था उसमें, नीलेश एंड आदित्य? नीलेश अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ नीलेश बताएं। सर आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल। सर मेरा एप्लीकेशन था कि मैंने डिवाइस बनाई थी, जैसे क्या होता है कि इस टाइम बसों में CNG लीकेज होने से फायर हो जाता है, तो उसमें डिवाइस थी कि अगर गाड़ी में CNG लीकेज हो जाती है
तो उसके अंदर एक सिस्टम होगा जिससे इंजन अपने आप ऑफ हो जाएगा और ड्राइवर को अलर्ट मिल जाएगा। लेकिन इवन अगर वो कैच कर लेता फायर को, तो जिस तरीके से एयरबैग ऑटोमेटिक होते हैं वैसे ही हमने एक ऑटोमेटिक बनाया था एक्सटिंग्विशर। तो वो पूरे इंजन कंपार्टमेंट में एक वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सटिंग्विश कर देगा। तो उससे क्या होगा, जो वहां पे नेचुरल गैस भरी होगी बाहर निकल जाएगी। तो एक तरीके से था कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड थी ये डिवाइस। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन था आपका। तो आप किस रैंक तक गए थे उसमें हैकाथॉन में? शायद आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ नीलेश बोलिए। नीलेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो सर, वो म्यूट नहीं हो रहा, अनम्यूट नहीं हो रहा था सर। उसमें सर स्टेट लेवल तक निकल गया था आगे सर। तो आपके इस एप्लीकेशन को आपने कहीं रजिस्टर करा रखा है? नहीं सर, नहीं कर पाया। बट प्रॉब्लम इसमें ये थी कि क्योंकि मैं मैकेनिकल से हूँ, तो सर आईओटी तक तो पहुंच गया था, बट उनको एक इंटरफेस चाहिए था कैसे इसे मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पे सर उतना मेरे लिए नॉलेजेबल नहीं था, लोग फ्रेंडशिप नहीं थी इतनी कि कोई इसमें मोबाइल ऐप डेवलप कर सके। आप एक काम करें, आप गूगल पे कॉटलिन के बारे में पढ़ें। आप गूगल पे जाकर के कॉटलिन के बारे में पढ़ें। कॉटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और मैंने जावा नहीं कहा, इसका कारण है कि जावा पढ़ने में शायद आपको ज्यादा टाइम लगे। जावा के थ्रू एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन जावा और कॉटलिन में एक डिफरेंस है। कॉटलिन के थ्रू बना हुआ एप्लीकेशन, कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाया गया एप्लीकेशन 2 डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। आपके आईफोन iOS को भी सपोर्ट करता है और एंड्रॉइड फोन को भी सपोर्ट करता है। तो जब आप अपने एप्लीकेशन के लास्ट तक पहुंच गए हैं, तो उस एप्लीकेशन के को हैंडल करने के लिए आपको कहीं ना कोई इंटरफेस बनाना होगा। और इस इंटरफेस को या तो आप वेब से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप एक IoT एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरी सलाह आपको, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि आपको कॉटलिन की तरफ जाना चाहिए। Kotlin is a very famous programming language जिससे हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन और iOS बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है नीलेश? अब IoT का यूज एक CS का बच्चा कर सकता है, एक मैकेनिकल का बच्चा कर सकता है, सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट कैसे कर सकता है, तो वो आपको इस स्लाइड में पता चल जाएगा। IoT स्मार्ट होम प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। स्मार्ट होम प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा जो IoT का यूज आज तक दिखा है, ऑलमोस्ट 85% ऑफ IoT प्रोजेक्ट्स आर यूज्ड इन स्मार्ट हाउसेस। ऑलमोस्ट 85%। स्मार्ट होम रैंकिंग एज हाईएस्ट IoT एप्लीकेशन ऑन द ऑल चैनल्स। आपको मैंने बताया 85%, परसेंटेज बता रहा हूं। The estimated amount of funding for a smart house startup exceed 2.5 billion। हर साल पूरे वर्ल्ड का ये सिनारियो मैं आपको बता रहा हूं, हर साल पूरे वर्ल्ड में 2.5 बिलियन रुपए पैसे आपको दिए जाते हैं स्मार्ट होम प्रोजेक्ट्स के स्टार्टअप के लिए। अगर आपको इनोवेटिव आइडिया सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मार्ट होम इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू ऑप्ट। IoT इन हेल्थ केयर। IoT इन हेल्थ केयर आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि लखनऊ में एक हॉस्पिटल है SGPGI, सबने नाम सुना होगा SGPGI। अगर आप गूगल पे सर्च करें PGI, तो गूगल पे सर्च करने के बाद जब आप PGI में जाएंगे तो PGI के 3 टर्म तक एक डॉक्टर रहे थे डायरेक्टर। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो डॉक्टर का नाम था डॉक्टर महेंद्र भंडारी। ये 3 लगातार टेन्योर तक डायरेक्टर रहे थे PGI के। और अभी ये मिशिगन में CEO हैं वट्टी कुटी फाउंडेशन की। वट्टी कुटी फाउंडेशन गूगल पे सर्च करिए। और इन डॉक्टर महेंद्र भंडारी साहब को ये 85 इयर्स के हैं, ये 85 इयर्स के हैं बॉस। और इनको
पद्मश्री से नवाजा गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और किसके लिए दिया गया था इनको पद्मश्री? तो रोबोटिक सर्जरी के लिए। ये इंडिया के पहले डॉक्टर थे जिन्होंने रोबोटिक सर्जरी करी थी। और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, ये आज खुद IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम ऐसे टेक्निक्स का यूज कर, ऐसी चीजें, ऐसी डिवाइसेस बना रहे हैं जिससे ह्यूमन ऑपरेशन नहीं करेगा, कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा, एक मशीन ऑपरेशन करेगी। तो आप ऐसे डॉक्टर की चीजें पढ़ सकते हैं। IoT को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, कहां पे? हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज्यादा। और इसमें भी एक स्टार्टअप के लिए बहुत सारे आइडियाज दिए जा रहे हैं, बहुत सारी फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने कहा ना अटल थिंकर लैब्स, मैंने एक लैब का नाम लिया अटल थिंकर लैब्स। आप गूगल पे अटल थिंकर लैब्स को सर्च करें, उस पे अपने आप को रजिस्टर करें। अगर आपके आइडिया को अच्छा लगेगा उन लोगों को तो वो आपको कॉल करेंगे। ही जस्ट कॉल्ड यू एंड यू आर सेलेक्टेड फॉर अटल थिंकर लैब प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है इस लैब के थ्रू, और इसमें IoT या AI या मशीन लर्निंग पे बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं। IoT का यूज बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में हो रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि बारिश आने वाली है, ये आप पहले अज्यूम तो कर लेते हैं, लेकिन उसको बचा नहीं पाते हैं अपने फसल को, तो उसके लिए IoT बेस्ड एप्लीकेशंस का यूज किया जा रहा है। बहुत बड़ा, मैंने आपको कहा ना, ये जितनी चीजें स्लाइड्स में आपको दिखा रहा हूं, ये सब स्लाइड्स गवर्नमेंट की तरफ से मुझे बताई गई थी, जिसमें ये सारे फंडिंग्स यूज करते हैं। जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, आप वहां से IoT एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। सर वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट, बेटा ये वेबसाइट बनाने का सेशन नहीं है, ये IoT बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने का सेशन है, ठीक है। और आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं द एवर ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन वुड बी टचिंग 9.6 बिलियन। 2050 तक हमारे पास 9.6 बिलियन हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो कंज्यूमेबल आइटम है वो एग्रीकल्चर से आता है। तो आप एक तरह से सोच सकते हैं कि अगर आपका IoT बेस्ड एप्लीकेशन अगर एग्रीकल्चर में काम कर रहा होगा, अगर एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहा होगा, तो आपका उस एप्लीकेशन को कितना प्रिसाइज किया जाएगा, कितना उसका एप्लीकेशंस को यूज किया जाएगा, आप सोच सकते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग को यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर ड्रोन्स को यूज कर सकते हैं, लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग को यूज कर सकते हैं, स्मार्ट ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हैं। अब IoT का मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल, IoT यूज्ड इन कनेक्टेड कार। सब लोगों ने इंटरनेट पे एक कार बनाने वाली कंपनी का नाम, एक कार का नाम बहुत बार सर्च किया है, न जाने कितनी बार सुना होगा, और वो है हमारी कनेक्टेड कार का एक एग्जांपल। यस शिवम, यस बिल्कुल सही, टेस्ला। क्या कोई मुझे बता सकता है कि एक टेस्ला कार बनाने में कितने तरह के एप्लीकेशंस यूज हुए हैं? कितने तरह के एप्लीकेशंस यूज हुए हैं? कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन लगाए गए हैं टेस्ला कार में? AI एंड ML। थोड़ा सा और अपूर्वा इसको एलोबरेट कर सकते हैं, और भी चीजें उसमें बता सकते हैं। सिर्फ AI बता करके आप नहीं बच सकते हैं, सिर्फ आप AI बता करके नहीं बच सकते हैं। IoT ऑल्सो। मैं आपको बताऊं, एक टेस्ला कार बनाने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज करने होते हैं डीप लर्निंग के, हमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते हैं डीप लर्निंग के। उसके बाद हमें कुछ हार्डवेयर यूज करने पड़ते हैं, कुछ सेंसर्स यूज करने पड़ते हैं, कुछ कैमरास यूज करने पड़ते हैं, और इन सब को कंट्रोल करता है हमारा एक IoT एप्लीकेशन। तो एक टेस्ला कार बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी? एक
डीप लर्निंग के एल्गोरिथम की जरूरत होगी, एक आईओटी बेस्ड डिवाइस की जरूरत होगी, और एक जीपीएस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। जीपीएस टेक्नोलॉजी, सत्यम बिल्कुल सही, V2V टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होगी, V2V कनेक्टिविटी की भी जरूरत होगी। तो इमेज प्रोसेसिंग इज अ पार्ट ऑफ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के थ्रू हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं। तो आप मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा है कि आप कोई ऐसे एप्लीकेशंस को ध्यान दें। आप टेस्ला कार की पूरी हिस्ट्री पढ़े कि एक टेस्ला कार में, मैं आपसे एक और क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, कौन बनेगा करोड़पति, अगर आपने लास्ट कुछ सीरीज के देखे होंगे इंटरनेट पे या अपने घर में, तो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कि एक टेस्ला कार में कितने कैमरेज यूज किए जाते हैं, एक टेस्ला कार में कितने कैमरे कनेक्टेड हैं। नीलेश 8। और कोई, और कोई? इट्स डिपेंड। नो अपूर्वा, ये तो बन गया है ना टेस्ला कार, तो उसमें कैमरे तो लगे हुए हैं और उन कैमरे को कनेक्ट किया गया है। हर्ष शर्मा 9। टोटल 16 कैमरा, टोटल 16 कैमराज आर यूज्ड इन वन टेस्ला कार। और सोचिए कैसा एल्गोरिथम है, कैसा एल्गोरिथम, सिर्फ आपको सोचना है, जस्ट यू इमेजिन एक कैसा एल्गो काम कर रहा है। किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पे एक ह्यूमन का कार चलाना कितना इम्पॉसिबल हो जाता है, कितनी परेशानियां होती हैं। उस टेस्ला कार में कितने एल्गोरिथम लगे हैं जिसके थ्रू वो कार बिल्कुल सही तरीके से ड्राइव होती है, वो कार बिल्कुल सही तरीके से ड्राइव होती है। तो आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि एक आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग का एप्लीकेशन ही इन चीजों को कनेक्ट करके रखता है, इन चीजों को कनेक्ट करके रखता है, और ये सेंसर्स को, ये सेंसर से डेटा लेता है और उस डेटा पे अपना कैलकुलेशन करता है, और देन वो कार ड्राइव होती है। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम भी इसी आईओटी डिवाइस से कनेक्ट होके काम करते हैं। कहां कहां और आप यूज कर सकते हैं आईओटी ट्रांसपोर्टेशन में, आप कहां कहां यूज कर सकते हैं एसेट ट्रैकिंग। आपने देखा होगा आपका कोई कार्गो कहीं से चला है तो कार्गो को आप मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू आईओटी। फ्यूल लेवल एंड एफिशिएंसी मॉनिटरिंग। मैं आपको एक एग्जांपल, मैंने एक कंपनी का नाम बताया था, करम इंडस्ट्री। ये एक कंपनी है जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स में डील करती है। ये एक कंपनी है जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स में डील करती है। आपके कानपुर में अभी मेट्रो का काम हो रहा है, मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूं। आपके कानपुर में अभी मेट्रो का वर्क प्रोग्रेस में है, और आप देखेंगे कभी भी आप उस रोड से क्रॉस करें जहां पे मेट्रो का ये काम हो रहा है, तो आप देखेंगे कि वहां के जितने वर्कर्स हैं वो सब एक हेलमेट पहने होंगे, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर या रेड कलर की। आप ध्यान से देखेंगे उस पे एक करम का लोगो होगा। मैं आपको वो लोगो भी दिखा दूं। ये लोगो लगा होगा, अगर आप उसको सर्च करेंगे, उसके हेलमेट को ध्यान से देखेंगे तो ये एक लोगो यूज हुआ होगा उस हेलमेट पे। तो ये हेलमेट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्या नाम है? इनका नाम है करम इंडस्ट्री। टॉप 10 कंपनीज हैं वर्ल्ड की जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स बनाती हैं, और टॉप 10 कंपनी में करम इंडस्ट्री का नाम है। टॉप 10 कंपनीज में, इंडिया से बाहर इसके 200 से ज्यादा ऑफिसेस हैं। अब आप सोचोगे कि सर आप मुझे करम के बारे में क्यों बता रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड, एक बार मेरे पास करम कंपनी से, पीएन इंटरनेशनल से एक कॉल आई, करम इंडस्ट्री से एक कॉल आई, और उन्होंने कहा कि रोहित मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए, एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जिससे हम हमारे यहाँ जितने वर्कर्स काम करते हैं उनका वेज कैलकुलेट कर पाए, उनका वेज कैलकुलेशन हो पाए, और जो बंदा जितना अच्छा काम करता है उसको उतना अच्छा वेज मिल पाए। क्योंकि करम में जो लोग काम करते हैं, बहुत कम लोग उसमें सैलरी पे काम करते हैं। सैलरी एंड वेजेज में डिफरेंस होता है। जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर क्लास होती है, वो वेजेज, वेजेज की सही हिंदी है तिहारी, आपने नाम सुना होगा। आपके घर पे कोई लेबर काम करने आता है, एक दिन के लिए आता है, काम करता है, काम कंप्लीट करता है, उसको आप पैसे देते हैं, वो चला जाता है। ऐसे ही सेम करम इंडस्ट्री में
7,000 वर्कर्स आते थे, काम करते थे, शाम को अपना वेज लेते थे, चले जाते थे, कल फिर आते थे, फिर काम करते थे, फिर अपना वेज कैलकुलेट करते थे, चले जाते थे। तो करम ने देखा कि बहुत सारे वर्कर एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, जिससे उनका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है और वो वेजेस देते जा रहे हैं उसको। तो करम ने सोचा कि हम किसी वर्कर को अगर कोई वेज दे रहे हैं तो उसके काम के हिसाब से दे। तो उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बना के दिखाइए जिससे हम किसी वर्कर का वेज कैलकुलेशन कर पाए। माय डियर फ्रेंड, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आपके सारे फैकल्टी यहां बैठे हैं, मैं अगर किसी फैकल्टी से ये पूछूं, किसी स्टूडेंट से ये पूछूं कि आप कितना पढ़ाई करते हो, ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा? तो ये मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था ये। तो मैं एक दिन करम के लखनऊ वाले ऑफिस को विजिट करने गया। 7,000 वर्कर वहां काम कर रहे थे। तो मैंने देखा कि वो सब एक सिस्टम को यूज कर रहे हैं और सिस्टम का नाम है पीएलसी। सिस्टम का नाम है पीएलसी। जैसे आप कंप्यूटर यूज करते हो, उनका कंप्यूटर, उनका जो सिस्टम था, एक हार्डवेयर था जिसका नाम होता है पीएलसी। दे ऑल आर यूजिंग पीएलसी। और पीएलसी से जब फाइनल कोई प्रोडक्ट निकल के जा रहा था तो पीएलसी में कोई काउंटर चलता था, पीएलसी में कोई काउंटर चलता था कि कितने प्रोडक्ट आज डेवलप हो पाए। जब वो स्टैंपिंग करते थे तो एक पीएलसी में काउंटर चलाते थे, एक मशीन में काउंटर को स्टोर करते थे। तो मेरा जैसे ही मैंने पीएलसी देखा, मैंने सोचा कि यार ये कंप्यूटर है, ये मेरा काम कर देगा। अब मैंने क्या किया, पीएलसी के ऊपर, पीएलसी डिवाइस के ऊपर हमने एक कंप्यूटर कनेक्ट किया। बिल्कुल लाइव काम बता रहा हूं और मैं इसका मॉनिटरी टर्म्स में भी आपको फायदा बताऊंगा। हम स्टूडेंट हैं, लेकिन हम 4 साल के लिए स्टूडेंट हैं, 3 सालों के लिए स्टूडेंट हैं। कभी तो हमें इंडस्ट्री में जाना है, कभी तो हमें इंडस्ट्रियल अप्रोच को फॉलो करना होगा, कभी तो हमें पैसे भी कमाने हैं। तो हम हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी, कैसे हम पैसे कमाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं भी आपके तरह ही स्टूडेंट था। 2013 का एमसीए पास आउट हूं मैं, एकेटीयू का, आपकी ही यूनिवर्सिटी का हूं, और मैं उसी एकेटीयू में काम भी कर रहा हूं। आप जरा सोचिए कितना अच्छा है मेरे लिए, मैंने उस जगह को अचीव किया जहां से मैं पास आउट हूं। और मैं आपको अपनी कहानी बता दूं, 85% नंबर तो थे, ये जल्दी कोई नहीं बताता है। मैं बहुत ब्रिलियंट नहीं था, क्योंकि मैं भी आपके तरह ही पढ़ाई करता था। मैं भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ता था, एग्जाम देता था, पास हो जाता, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो बिल्कुल नहीं करता था। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके सर ने, रेहान सर ने बताया कि भाई आप 15 से ज्यादा आईओटी डिवाइस बना चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, मेरे पूरे सिलेबस में पाइथन नहीं थी। मैंने पाइथन क्यों सीखी? मेरे पाइथन सीखने का सबसे बड़ा कारण ये करम इंडस्ट्री बना। अब मैं आपको बताता हूं मैंने उनके पीएलसी पे क्या किया। मैंने उनके पीएलसी से एक कंप्यूटर अटैच किया, उनके पीएलसी से एक कंप्यूटर अटैच किया, और कंप्यूटर पे उस पीएलसी की मॉनिटरिंग, जो पीएलसी कैलकुलेशन कर रहा था उसका जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको उस कंप्यूटर पे नेविगेट करके, उस कंप्यूटर के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करके वो स्टोर करने लगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, हर एक बंदा सुबह लॉगिन करता था तो मैं उसकी लॉगिन आईडी को कैच करता था, मैं उसकी लॉगिन आईडी को कैच करता था, और लॉगिन आईडी पे मैं वैल्यूज स्टोर करता था। आप सब लोग, अगर आप लोग कितने भी कम प्रोग्रामिंग की होगी ना, आपने एक प्रोग्राम जरूर बनाया होगा। लूप चलाते थे और लूप के अंदर आकर के C++ का कोड करते थे। कंडीशन ट्रू होती थी तो C++ काउंटर को बढ़ाते जाते थे। तो सेम लॉजिक मैंने यूज किया। जैसे ही बंदे ने लॉगिन किया, हमने उसके आईडी को कैच किया, और जितने प्रोडक्ट वो डेवलप करता जा रहा है मैं I++ करता जा रहा हूं, और एट द एंड ऑफ द डे जब वो लॉग आउट कर रहा था तो मैं उसकी जो C की वैल्यू थी उसको डेटाबेस में स्टोर कर दिया। तो मैंने एक दिन बस एक कंप्यूटर लगाया, उस पे एक वर्कर काम किया, एक वर्कर ने शाम को जब सबमिट किया, लॉग आउट किया, तो 86 प्रोडक्ट उसने बनाए थे, 86 प्रोडक्ट। मैंने कल इस मशीन पे दूसरे बंदे को काम कराया, उसने जो प्रोडक्ट बनाया वो था 72। तो प्रोडक्ट में मुझे प्रोडक्ट में डिफरेंस दिखने लगा। फिर मैंने तीसरे दिन तीसरे वर्कर को काम कराया, उसके प्रोडक्ट ज्यादा आ गए, 98 प्रोडक्ट्स उसने बनाए। तो इस तरह से मैंने उसका कैलकुलेशन किया,
और माय डियर फ्रेंड, इसके लिए जो मैंने हार्डवेयर यूज किया था, इसके लिए जो मैंने कंप्यूटर यूज किया था, बेस्ट आईओटी का कंप्यूटर है। बेस्ट कंप्यूटर इज एन आईओटी, जिसका बेस्ट हार्डवेयर का नाम आपने सुना होगा, उस हार्डवेयर का नाम है रास्पबेरी पाई। उस हार्डवेयर का नाम है रास्पबेरी पाई। तो आप भी रास्पबेरी पाई को यूज कर सकते हैं। आप जरा सोचिए, एक रास्पबेरी पाई की कॉस्ट होती है 3000 रुपए, एक रास्पबेरी पाई की कॉस्ट होती है 3000 रुपए, और एक उस प्रोग्राम की कॉस्ट बामुशक्कत आप कैलकुलेट करोगे तो 20 से 25 रुपए आएगी। मैंने एक डिवाइस का 5000 रुपीज चार्ज किया था, एक डिवाइस का। 7000 डिवाइसेस एक यूनिट पे मैंने सप्लाई किए, एक ही प्रोग्राम बैठ करके कंट्रोल किया। ऑर्डिनो, देखो अपूर्वा, ऑर्डिनो आपके बजट में आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऑर्डिनो पे आप इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते। ऑर्डिनो पे आप इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनो पे से आप आईओटी बेस्ड डिवाइस नहीं बना सकते हैं। उसका कॉस्ट कम होता है, उसकी कैपेसिटी कम होती है, उस पे काम भी कम किया जा सकता है। वो रास्पबेरी पाई को रिप्लेस कभी नहीं कर सकता। डन। तो बहुत सारे जगह पे आप आईओटी का यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको फ्यूल एफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए बताया, लाइव जियो ट्रैकिंग के लिए बताया, बहुत सारे आरपीआई इज द बेस्ट, यस। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कर सकते हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट फ्लो कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं, कार्गो क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आपको रास्पबेरी पाई दिखाना चाह रहा हूं। क्या आप लोगों में से किसी बच्चे ने रास्पबेरी पाई कंप्यूटर को यूज किया है, देखा है? आप लोगों ने रास्पबेरी पाई कंप्यूटर को यूज किया है? अपूर्वा यस, आदिल यस, सबने ऑलमोस्ट यूज किया होगा। आपके कॉलेज ने कहा कि भाई इतने सारे आप एप्लीकेशन बना चुके हैं, तो आपने इस कंप्यूटर का नाम जरूर सुना होगा और जरूर यूज किया होगा। ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स लगे होते हैं, कुछ पिन्स लगे होते हैं, कुछ सेंसर लगे होते हैं। इसमें इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट लगा होता है, जिसको हम इथरनेट पोर्ट कहते हैं, जिसको हम इथरनेट पोर्ट करते हैं। इस पे आप कोई साउंड, ऑडियो, वीडियो प्ले कर सकते हैं। इसके लिए इसमें ऑडियो जैक भी लगा होता है। इस सिस्टम को किसी मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए इसमें HDMI पोर्ट लगा होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा अभिषेक, आपने इस पे प्रोजेक्ट बनाया, GPIO पिंस होते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPIO? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPIO? अपूर्वा, अभिषेक, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो टोटल कितने GPIO पिंस होते हैं इसमें? टोटल कितने GPIO पिंस होते हैं इसमें? नीलेश 48, हिमांशु 40। देयर आर 40 GPIO पिंस इन वन रास्पबेरी पाई। एक रास्पबेरी पाई में 40 GPIO पिंस होते हैं। ठीक है, 40 GPIO पिंस होते हैं। और इन सारा काम आपने अगर डिवाइसेस बनाए हैं तो सारा का सारा काम इन 40 GPIO पिन से होता है। सारा का सारा काम इन 40 GPIO पिन से होता है। पक्का? सबने यूज किया होगा GPIO पिन को। ओके ओके। तो रास्पबेरी पाई है क्या? तो रास्पबेरी पाई इट इज अ क्रेडिट कार्ड कंप्यूटर, क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर, फुल्ली फंक्शनल कंप्यूटर which can be plugged into a monitor. And why Raspberry Pi is used? क्यों हम Raspberry Pi को यूज करते हैं? क्या हमारा लैपटॉप सफिशिएंट नहीं है? तो इट इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटर, पॉकेट साइज कंप्यूटर होता है। बहुत कम कॉस्ट में ये एक ऐसा कंप्यूटर आपको मिलता है जिससे आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। रास्पबेरी पाई से आप क्या क्या काम कर सकते हैं? तो वी परफॉर्म ब्राउजिंग इन द इंटरनेट। हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम इंटरनेट को चला सकते हैं इस रास्पबेरी पाई पे। हम वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, प्लेइंग गेम्स, हम बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं रास्पबेरी पाई पे। एंड ऑब्वियसली वी कैन डिजाइन अ IoT बेस्ड एप्लीकेशन।
सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम कोई IoT बेस्ड एप्लीकेशन भी डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो एक छोटे से कंप्यूटर में कितनी पावर है, कितनी पावर है? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए डेवलप किया गया है। लेकिन बॉस सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कंप्यूटर की कॉस्ट तो बहुत कम है, लेकिन इसके लिए आपको एक मॉनिटर यूज करना होगा। तो मॉनिटर की कॉस्ट भी अलग से कैलकुलेट होगी। इस कंप्यूटर में पावर सप्लाई, पावर का कोई बैकअप नहीं होता है। इस कंप्यूटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी गई तो ये कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। तो आपको इसके लिए यूपीएस भी लेना होगा, आपको इसके लिए कीबोर्ड भी लेना होगा, माउस भी लेना होगा। समझ रहे हैं? तो ये बिल्कुल कंप्यूटर है, लेकिन सस्ता वाला कंप्यूटर है। अदर डिवाइसेस आपको चाहिए ही होंगे इसके साथ। ठीक है, अब मुझे बताइए, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे यंग बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके। बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू रेहान सर कि इतने अच्छे बच्चे हमें देने के लिए। अब मुझे बताएं कि रास्पबेरी पाई में कंप्यूटर है, और कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। बहुत बढ़िया, मेरे पूछने से पहले ही बता दिया। नूब्स यूज हो सकता है, रेस्बियंस यूज हो सकता है, विंडोज 10 यूज हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें आप जो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हैं वो नूब्स और रेस्बियंस होता है। सबसे जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो नूब्स होते हैं और रेस्बियंस यूज करते हैं, जो कि उबंटू, अच्छा उबंटू बेस्ड होता है। अच्छा, अभी आपको दिखाऊंगा उबंटू है कि विंडोज बेस्ड होता है, आपको पता चल जाएगा तुरंत। अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, फ्यूचर जो आपका गोल है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ IoT के इंजीनियर्स को हायर कर रही हैं। अदर प्रोग्रामिंग छोड़ दीजिए आप, C++, जावा, PHP, एंड्रॉइड सब छोड़ दीजिए। अगर आपको IoT बेस्ड एप्लीकेशन बनाने आता है तो आप गूगल, अमेजॉन, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर ऐसे बड़े कंपनीज में सेलेक्ट हो सकते हैं। ऐसी बड़ी कंपनीज में आप काम करने के लायक हैं, और आपको इन सारे कंपनीज में एप्लीकेशंस देने चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट मैं स्लाइड को बंद करूंगा, उसके बाद हम एक एप्लीकेशन की तरफ काम करेंगे, एक एप्लीकेशंस बना के देखेंगे। और आज के स्लाइड का लास्ट कोट मैं आपको दिखा रहा हूं, इफ यू थिंक द इंटरनेट हैज चेंज योर लाइफ, आप ऐसा मानते हैं, आप ऐसा मानते हैं कि इंटरनेट ने आपकी लाइफ बदल दी है। हम हर काम के लिए डिपेंड हो गए हैं इंटरनेट पे। हर काम, टिकट बुक कराना है इंटरनेट, सामान खरीदना है इंटरनेट, कहीं जाना है गूगल मैप इंटरनेट, कुछ भी काम करना है हम इंटरनेट पे डिपेंड हो गए हैं। थिंक अगेन, थिंक अगेन, द IoT is about to change it all over again। अगर इंटरनेट ने इतना चेंज किया है तो IoT क्या हाल करने वाला है, तो IoT क्या हाल करने वाला है। अभी आप गूगल, अगर आप टेलीविजन घर पे देखते हैं, अमिताभ बच्चन का एक AC का एड आता है, विप्रो के बल्ब का एड आता है। These all are IoT based applications। These all are IoT based applications। आप और हम आज IoT नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड IoT पे काम कर रहा है, पूरा वर्ल्ड। और बहुत तरह के एप्लीकेशंस बन के आ रहे हैं हर साल। देन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इंटरनेट ने चेंज करा है तो IoT क्या हाल करने वाला है। IoT बिल्कुल बदलने वाला है हमारे सिस्टम को। IoT से डिफरेंट तरह के आप सेगमेंट देख लिया, आपने खेती में काम देख लिया, आपने मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए काम देख लिया, आपने एग्रीकल्चर में काम देख लिया, आपने AVR के बारे में आपको थोड़ा सा बताना। ठीक है, ठीक है। अब अभी तक जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा था वो मेरे सिस्टम की स्क्रीन थी, आपने सबने मेरे सिस्टम की स्क्रीन देखी होगी। अभी आपके सामने मैं एक कंप्यूटर यूज करने वाला हूं, कनेक्ट करने वाला हूं। आप सब लोग देखेंगे कि मैंने एक सिस्टम यूज किया है। आप सब लोगों को मेरा सिस्टम दिख रहा है?
आप सब लोगों के मेरे डेस्कटॉप पे एक नया डेस्कटॉप दिख रहा है? आप सब लोगों को मेरे सिस्टम पे एक नया डेस्कटॉप दिख रहा है? ये रास्पबेरी पाई सिस्टम ऑन है, ये रास्पबेरी पाई का डेस्कटॉप है। आप सब फैमिलियर होंगे, आप सब लोग फैमिलियर होंगे इससे। तो ये किसका डेस्कटॉप है? ये रास्पबेरी पाई का डेस्कटॉप है, ठीक है। अब जहां आप मेरे को देख पा रहे हैं, जहां पे मेरी फोटो आपको दिख रही है, आप उस सिस्टम पे देखेंगे मैं कैमरा चेंज करने वाला हूं और कैमरा में आपको रास्पबेरी पाई कंप्यूटर दिखाने वाला हूं, ठीक है। कैमरा में आपको रास्पबेरी पाई कंप्यूटर दिखने वाला है। आपको रास्पबेरी पाई दिख रहा है? you all are seeing this computer, विजिबल है? आपको रास्पबेरी पाई दिख रहा है? रास्पबेरी पाई से मैंने एक माउस कनेक्ट कर रखा है, दिख रहा है? आपने इसमें मैंने इंटरनेट का एक केबल भी लगा रखा है, इथरनेट केबल, आपको वो भी दिख रहा होगा। आपके जीपीआईओ पिंस भी दिख रहे हैं, 40 जीपीआईओ पिंस लगे हैं, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें आपको मैंने दिखाई और आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक बोर्ड है, मेरे पास एक बोर्ड है, एक हार्डवेयर है जिसपे 2 बल्ब लगे हैं। एक बोर्ड है, एक हार्डवेयर है जिसपे 2 हार्डवेयर कनेक्टेड है। और ये बोर्ड मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड कहीं आपको इंटरनेट उस पे नहीं मिलने वाला है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे नहीं मिलने वाला है। ये खुद से बनाया गया बोर्ड है, आपको दिख भी रहा होगा। 2 होल्डर्स लगे हैं और बस 2 बल्ब कनेक्टेड है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होंगे वो इस पे एक बोर्ड भी देख पा रहे हैं, एक 2 इस पे मैंने रिले लगा रखे हैं, 2 मैंने इस पे रिले लगा रखे हैं। डन? इस पे हमने 2 रिले लगा रखे हैं, दिख रहा है आपको? और बस, और कोई कनेक्शन नहीं है। और मैंने रास्पबेरी पाई में पावर, यहां से पावर का एक केबल होता है, क्योंकि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिना पावर के ऑन होगा नहीं, तो हमने पावर कनेक्शन भी कर रखा है। डन? चलिए अब देखते हैं, इस कंप्यूटर को चलाते हैं। तो इस हमारे कंप्यूटर का जो स्टार्ट बटन होता है वो लेफ्ट हैंड बॉटम में आता है, वो लेफ्ट हैंड बॉटम में आता है। इसका स्टार्ट बटन लेफ्ट हैंड टॉप पे आता है। देखिए स्टार्ट बटन, देख रहे हैं? स्टार्ट बटन सबको दिख रहा है? स्टार्ट बटन सबको दिख रहा है? प्रोग्रामिंग, एजुकेशन, ऑफिस, इंटरनेट, साउंड वीडियो, ग्राफिक्स, गेम्स, एक्सेसरीज, बहुत सारी चीजें नीचे आएंगी। नीचे एक शटडाउन का भी ऑप्शन आता है। तो हमें क्या करना है? हमें इस पे क्या करना है? हमें प्रोग्रामिंग करनी है। हमें क्या करना है? प्रोग्रामिंग करनी है। और प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में करनी है? तो पाइथन लैंग्वेज में करनी है। देखिए इसमें पाइथन का ऑप्शन आ रहा है और ये लिख करके भी दे रहा है कि पाइथन का कौन सा वर्जन इसमें इंस्टॉल है। ये लिख करके भी बता रहा है कि पाइथन का कौन सा वर्जन इसमें इंस्टॉल है, पाइथन का कौन सा वर्जन इसमें इंस्टॉल है। बता सकते हैं आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल है? पाइथन 3। गुड गुड। अब मैं आपको इस सिस्टम को मिनिमाइज कर रहा हूं, इसके कंप्यूटर को, और आपको मैं दिखा रहा हूं कि क्या मेरे सिस्टम में, मेरे लैपटॉप में पाइथन का कोई वर्जन पड़ा है। देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट आपके सिस्टम में होता है और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के स्क्रीन जो आएगी ब्लैक कलर, आपके में ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी। आप जब भी अपने लैपटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस करोगे तो आपके में ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है। मैंने कलर चेंज कर रखा है, ठीक है। और जैसे ही ब्लैक कलर की स्क्रीन पे जहां कर्सर ब्लिंक करे वहां आप टाइप करिए पाइथन, वहां आप टाइप करिए पाइथन, और जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको पाइथन का वर्जन पता चल जाएगा। तो देखो टॉप पे लिखा रहा है पाइथन 3.9.4, पाइथन 3.9.4, दैट इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ पाइथन। ये पाइथन का सबसे अपडेटेड वर्जन है। अब आप कहोगे कि सर कैसे अपडेटेड है, मैं कैसे मानूं? आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। तो माय डियर फ्रेंड, पाइथन एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। पाइथन एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। आप गूगल पे पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, python.org। python.org इज द ऑफिशियल साइट ऑफ पाइथन। मैं आपके चैट बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दे रहा हूं।
आपके चैट बॉक्स में इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डाल दे रहा हूं, python.org। क्लियर? अब इस python.org पे आपको जाना है, डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाना है, और आप देखिए मेरा वर्जन कुछ दिन पुराना है, मैंने 20 दिन पहले इंस्टॉल किया था। पाइथन ने नया वर्जन लॉन्च कर दिया है, पाइथन 3.9.5, पाइथन 3.9.5। आप इस बटन को क्लिक करके बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन 3.9.5। तो अभी जो वर्जन इंडस्ट्री में चल रहा है वो 3 वाली सीरीज चल रही है। तो 3 वाली सीरीज का आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर लो, 3.1, 3.2, 3.9, 3.5, 3.6, कुछ भी इंस्टॉल कर लो, सब एक तरह के वर्जन है। ठीक है, चलिए, तो मैंने पाइथन को आपको चेक करा दिया। अब मैं दोबारा फिर से रास्पबेरी पाई सिस्टम ऑन करता हूं और इसमें जाता हूं प्रोग्रामिंग में और पाइथन पे क्लिक करता हूं, पाइथन पे क्लिक करता हूं, स्क्रीन के आने का वेट कर रहा हूं, पाइथन के आईडीएलई के खुलने का वेट कर रहा हूं। पाइथन का आईडीएलई खुल गया, सबको दिख रहा है? पाइथन का एक स्क्रीन आई होगी और ये बता रहा है कि रास्पबेरी पाई में पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। रास्पबेरी पाई में हमारे सिस्टम में अलग वर्जन इंस्टॉल था, इस पे अलग वर्जन इंस्टॉल है, सबको दिख रहा होगा। पाइथन 3.5.3 बहुत अच्छा अपडेटेड वर्जन है, आप किसी पे काम कर सकते हैं, 3 की सीरीज किसी भी वेरिएंट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां जो 3 ग्रेटर देन सिंबल दिख रहे हैं, यहां पे आप पाइथन का प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, यहां पे आप पाइथन का प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो यहां पे प्रोग्राम ना डेवलप करके, यहां पे पाइथन का प्रोग्राम ना डेवलप करके हम फाइल में जाते हैं और हम न्यू फाइल ले लेते हैं, हम फाइल में जाते हैं और न्यू फाइल ले लेते हैं। दिख रहा है सबको? पाइथन में न्यू फाइल में आ गए। चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन का, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं पहले आपको समझाने के लिए। हमने एक वेरिएबल लिया ए, हमने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10। क्या ये कोड सही है? क्या ये कोड जो मैंने लिखा है a वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू 10, क्या ये सही है? क्यों सही है? हमने a का डेटा टाइप तो लिखा ही नहीं, हमने इसमें a का डेटा टाइप तो लिखा ही नहीं, हमने इसमें a का डेटा टाइप तो लिखा ही नहीं। नो डेटा टाइप रिक्वायर्ड, या डेटा टाइप होता ही नहीं है। नो डेटा टाइप रिक्वायर्ड या डेटा टाइप होता ही नहीं है, होता है, बहुत बढ़िया। इट फॉलोज द रूल ऑफ डायनेमिक सिमेंटिक्स, पाइथन फॉलोज द रूल ऑफ डायनेमिक सिमेंटिक्स। ये सी की तरह नहीं है जहां पे इंट a इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन लिखना पड़ता है। सी प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर होता है। सी में वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले यह बताना पड़ता है कि आप किस तरीके के हो, आप किस नेचर के वैल्यू को एक्सेप्ट करोगे। लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में क्या होता है, पाइथन वैल्यू को देख करके ए का टाइप डिसाइड करता है, वैल्यू को देख करके ए का टाइप डिसाइड करता है। कोई अगर आपसे पूछता है कि ए किस टाइप का है तो आप क्या बताओगे? कोई आपसे पूछता है ए किस टाइप का है तो आप क्या बताओगे? इंट। बिल्कुल, आप उसको प्रूफ भी कर सकते हो, आप उसको प्रूफ भी कर सकते हो, आप प्रिंट करके दिखा सकते हो, आप प्रिंट करके दिखा सकते हो। प्रिंट टाइप फंक्शन एक होता है, टाइप फंक्शन एक होता है और ए का टाइप। देखिए, सीखिए थोड़ा सा। ए का हम टाइप फंक्शन के थ्रू क्या पता कर रहे हैं? टाइप पता कर रहे हैं और उसको प्रिंट करा दे रहे हैं, उसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करा दे रहे हैं। देखिए मैं इस फाइल को सेव कर दे रहा हूं, इस फाइल को सेव कर दे रहा हूं, और इस फाइल को सेव करने के लिए हम क्या नाम यूज कर रहे हैं? हम नाम यूज कर रहे हैं VIT1, VIT1, और हमने इसको सेव कर दिया।
अब ये फाइल सेव हो गई vit1.py नाम से, यहां आपको दिख रहा होगा vit1। ठीक है, मैंने इस प्रोग्राम को जैसे ही रन कराया, ये इसने टाइप बताया ही नहीं, आपके काम का है, इसीलिए आपको बता रहा हूं, आगे इस टॉपिक को आपको कभी नहीं पता चला। ठीक है, चलिए, तो हमने ए का टाइप बता दिया। अब इसी प्रोग्राम में चेंज कर रहे हैं, हम बी नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, बी की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, हम बी नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, बी की वैल्यू कितनी रख रहे हैं 5, और हम सी नाम का एक वेरिएबल बना करके a प्लस बी कर रहे हैं, a प्लस बी, और प्रिंट करा रहे हैं किसको, सी को। तो 15 प्रिंट होना चाहिए, तो 15 प्रिंट होना चाहिए। तो 15 प्रिंट होना चाहिए। चलिए इस प्रोग्राम को फिर से सेव करते हैं, फिर से रन कराते हैं। 15 आंसर आ रहा है, 15 आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा प्रोग्राम। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपने छोटा सा एक प्रोग्राम देख लिया पाइथन में। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, एक नई फाइल ले रहा हूं। मैं आपसे एक काम करवाना चाह रहा हूं कि मैं एक छोटा सा गेम बनाना चाह रहा हूं, एक छोटा सा गेम डेवलप करना चाह रहा हूं, और उस पूरे कोड का नाम है हाउ टू कंट्रोल दीज हार्डवेयर्स। हाउ टू कंट्रोल दीज हार्डवेयर्स, मैंने दोनों बल्ब की तरफ इशारा किया है। हाउ टू कंट्रोल दीज हार्डवेयर्स फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर, फ्रॉम रास्पबेरी पाई। इस रास्पबेरी पाई के थ्रू हम कैसे इन दोनों बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं। पक्का? प्रोग्राम का नाम है, ये तो आपने समझ लिया। अब प्रोग्राम के बनाने से पहले, आउट कोड लिखने से पहले आपको उस प्रोग्राम का नाम सुनना होगा। उस प्रोग्राम का नाम है समेशन क्विज, उस गेम का नाम है समेशन क्विज। हमें गेम बनाना है समेशन क्विज नाम का, ठीक है, जिसमें यूजर से हम 3 नंबर इनपुट कराएंगे। यूजर से हम 3 नंबर इनपुट कराएंगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। पहला नंबर, दूसरा नंबर, और जो तीसरा नंबर होगा वो पहले दूसरे नंबर का सम होगा। जो पहला नंबर होगा वो तीसरा नंबर होगा, वो पहले और दूसरे नंबर का सम होगा। अगर सम सही आता है तो ग्रीन बल्ब, सम गलत आता है तो रेड बल्ब। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, हाउ टू कंट्रोल अ हार्डवेयर फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर। क्लियर? आपको प्रोग्राम समझ में आया? क्या हमें कोड करना है, क्या हमें कोड करना है, वो सबको समझ में आया? ओके ओके, चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम RPI इंपोर्ट GPIO। कोई इस लाइन का मतलब मुझे बता सकता है? अगर आपने इस लाइन को कभी यूज किया, अभी एक बच्चे ने लिखा कि सर आपको ये लाइन लिखनी होगी, तो क्या आप इसका मतलब मुझे बता सकते हैं? RPI लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, लाइब्रेरी इंक्लूड किया है। RPI का जो नाम है, इट इज कॉल्ड अ मॉड्यूल, इट इज कॉल्ड अ मॉड्यूल। RPI इज अ मॉड्यूल। तो RPI मॉड्यूल से हम एक GPIO मॉड्यूल को बाहर निकाल रहे हैं। फ्रॉम RPI लाइब्रेरी वी आर इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल नेम्ड GPIO, क्योंकि हमें आगे चल के प्रोग्राम में GPIO को यूज करना है। डन? फिर एक कोड लिखा हमने फ्रॉम
टाइम इंपोर्ट स्लीप। देन बताइए दूसरा काम क्या किया हमने? फ्रॉम आरपीआई फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, from time import slip. Time is a function, time is a module, time is a module और sleep is a function. टाइम मॉड्यूल के अंदर एक स्लीप नाम का फंक्शन बना हुआ है, तो हमने उसको बुलाया। ये दोनों प्री डिफाइंड हैं। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज करते थे प्रिंटफ, लेकिन प्रिंटफ को बुलाने के लिए आपको #include_stdio.h लिखना पड़ता था। सेम वही प्रोसेस है। सी में हेडर फाइल कहते थे, पाइथन में मॉड्यूल कहते हैं। इतना कोड लिखने में कोई दिक्कत? इन दोनों लाइनों में कोई दिक्कत तो बताइए। बहुत बढ़िया अभिषेक। इन दोनों लाइनों में कोई दिक्कत? वसुंधरा नो, अभिषेक चलिए आप इस स्क्रीन, आपके जो स्क्रीन दिख रही है, जो रेस्पबेरी पाई दिख रहा है, आप उसको देखेंगे। रेस्पबेरी पाई पे आप देखेंगे कि रेस्पबेरी पाई पे 40 जीपीआईओ पिन होते हैं। तो इस पिन से हम तो प्रोग्राम बना रहे हैं रेस्पबेरी पाई पे, हम तो अपना कोड रेस्पबेरी पाई पे लिख रहे हैं, इस कंप्यूटर पे। इस कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करना होगा, इस कंप्यूटर से उस हार्डवेयर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम एक पिन यूज कर रहे हैं, पिन नंबर 2। पिन नंबर 2 कोई बता सकता है पिन नंबर 2 किधर होता है? कोई बता सकता है पिन नंबर 2 कहां पाया जाता है? एंड वाई पिन नंबर 2 इज यूज्ड? एंड वाई पिन नंबर 2 इज यूज्ड? क्या आपको पिन डायग्राम पता है? पिन डायग्राम तो आप इंटरनेट पे सर्च करें पिन डायग्राम के बारे में। आप इंटरनेट पे सर्च करें पिन डायग्राम के बारे में, रेस्पबेरी पाई के पिन डायग्राम के बारे में। ये पिंस कैसे लगे होते हैं? एक तरफ ऑड की सीरीज होती है, एक तरफ इवन की सीरीज होती है। एक तरफ ऑड की सीरीज होती है, एक तरफ इवन की सीरीज होती है। तो हमने पिन नंबर 2 को कनेक्ट किया, पिन नंबर 2 को कनेक्ट किया वीसीसी से। 1 2 3 4 बिल्कुल सही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। हमने पिन नंबर 2 को कनेक्ट किया वीसीसी से, पिन नंबर 2 को कनेक्ट किया वीसीसी से। वीसीसी फुल फॉर्म, वीसीसी का फुल फॉर्म वीसीसी का फुल फॉर्म कोई बताएगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे बच्चे इसको यूज कर चुके हैं। वोल्टेज कॉमन कलेक्टर, यस, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए पिन होता है। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल हिमांशु सही कह रहे हैं। वोल्टेज कॉमन कंट्रोल कलेक्टर उसका नाम होता है, लेकिन इसको आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया। अब हम पिन नंबर 6 को यूज कर रहे हैं। पिन नंबर 6, why pin number 6 is used? Why pin number 6 is used? For ground, for ground. Why pin number 6 is used? For ground. अगर हम ग्राउंड कहेंगे तो वो टेक्निकल लैंग्वेज है, अगर हम अर्थ कहेंगे तो वो नॉन टेक्निकल लैंग्वेज है। हम उसको अर्थ कहेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, आपके घर में एक अर्थिंग लगी होगी। ठीक है, तो 6 नंबर इज पिन इज यूज्ड फॉर ग्राउंड पर्पस। बहुत सारे पिन में से आप 6 को भी यूज कर सकते हैं, आप 4 को भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे, अगर आप गूगल पे पिन डायग्राम सर्च करो तो बहुत सारे पिन एलोकेट किए जाते हैं ग्राउंड के पर्पस से। बहुत सारे पिन ग्राउंड के पर्पस से एलोकेट किए गए हैं। चलिए, ये 2 कनेक्शन तो आपने करने ही करने हैं, ये 2 कनेक्शन तो आपको किसी भी काम के लिए करने हैं। अब आप देखिए कितने हार्डवेयर हैं आपके पास, आपके पास कितने हार्डवेयर हैं?
आपके पास कितने हार्डवेयर हैं जिनको आपको कंट्रोल करना है, कनेक्ट करना है? 2 हार्डवेयर है, तो मुझे 2 कनेक्शन मिनिमम और करने होंगे, मुझे 2 कनेक्शन मिनिमम और करने होंगे। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे पिन हमारे पास खाली थे, मैंने एक पिन यूज किया 33, मैंने एक पिन यूज किया 33, मैंने एक पिन यूज किया 33। मैं 33 बोलूं, मैं 33 बोलूं, आप ग्रीन समझना। मैं 33 बोलूं, आप क्या समझोगे? ग्रीन। मैं 33 बोलूं, आप क्या समझोगे? ग्रीन बोल रहे हैं सर, ठीक है। चलिए इसी तरह सेम एज इट इज। अच्छा 33 पिन 2 और 6 के अपोजिट साइड में मिलेगा, 2 और 6 के, क्योंकि 2 और 6 क्या है? इवन नंबर्स है। 33 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की सीरीज अलग लगी हुई है, ऑड नंबर की सीरीज अलग लगी हुई है। फिर हमने एक पिन और यूज किया, एक पिन और यूज किया, मैंने सारे करेक्शन कर दिए। मैंने जो दूसरा पिन यूज किया है वो है 35, एंड 35 इज यूज्ड फॉर रेड। $35 is used for red. Clear? 35 is used for red. चलिए अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, मैंने 2 कनेक्शन सारे कर दिए। अब हम प्रोग्रामिंग करने आ रहे हैं, अब हम प्रोग्रामिंग करने आ रहे हैं। तो फ्रॉम आरपीआई इंपोर्ट जीपीआईओ, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। अब हम दूसरा जो लाइन, तीसरी लाइन जो लिख रहे हैं वो है जीपीआईओ डॉट सेट मोड। जीपीआईओ को बुलाया था और जीपीआईओ के थ्रू सेट मोड फंक्शन को यूज किया, सेट मोड फंक्शन को यूज किया। और सेट मोड के अंदर जाकर के हमने क्या लिखा, हमने क्या लिखा? जीपीआईओ को कंट्रोल करो और बोर्ड को कंट्रोल करो। जीपीआईओ को कंट्रोल करो मतलब 40 पिन को कंट्रोल करो। और क्योंकि हमने कनेक्शन पिन से ही किए, 2 इज यूज्ड, 6 इज यूज्ड, 33 इज यूज्ड एंड 35 इज यूज्ड, तो हमने इन सारे बोर्ड्स को, जीपीआईओ को, पिन्स को ऑन किया। यस यू कैन यूज बीसीएम एंड बोर्ड, यस यस यस। एक और फंक्शन होता है सेटअप, एक और फंक्शन होता है सेटअप, एक और फंक्शन होता है सेटअप नाम का। तो जीपीआईओ डॉट सेटअप, अभी सेट वार्निंग नहीं, देखो देखो पहले, देखो बेटा अभिषेक, अभिषेक बहुत ध्यान से समझिएगा। अभिषेक मतलब क्या होता है कि आप मुझे एक लॉजिक बताओ, बुखार जब आता है तब मेडिसिन लेते हैं या बिना बिना बुखार आए मेडिसिन ले लेते हैं? सिंपल सी एक कहानी बताओ, बुखार जब आता है तब मेडिसिन लेते हैं ना, या हम मेडिसिन खा के पहले ही बैठ जाते हैं कि कल बुखार आने वाला है, लाओ आज मेडिसिन खा लें? नहीं होता है ना ऐसा। तो वार्निंग आएगी तब सेट वार्निंग लिखेंगे, वार्निंग आएगी तो हम सेट वार्निंग लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। ऑलवेज अरे यार अलर्ट रहने की बात है, अलर्ट रहिए, दवाई ले आकर के रख लीजिए रूम में, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बुखार का पता नहीं और हम टेबलेट खा ले, ऐसा नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर एक लाइन का कोड आपको समझ में आएगा। हमने लिखा जीपीआईओ डॉट सेटअप, सेटअप में हमने पास किया 33, हमने पास किया 33। बताइए 33 मींस व्हाट? 33 मींस व्हाट? 33 मींस ग्रीन, बहुत बढ़िया। तो हमने लिखा 33 कॉमा, दूसरा पैरामीटर पास कर रहे हैं जीपीआईओ डॉट आउट, जीपीआईओ डॉट आउट।
अब आपको 33 तक का तो क्लियर है, जीपीआईओ डॉट आउट नहीं समझ में आ रहा होगा, बोलो जीपीआईओ डॉट आउट नहीं समझ में आ रहा है ना, बताइए, जीपीआईओ डॉट आउट नहीं समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत, देखिए प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, तो आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दो ना, आप प्रोग्राम कहां बना रहे हो, आप प्रोग्राम कहां बना रहे हो, रेस्पबेरी पाई पे बना रहे हो, और रेस्पबेरी पाई से उस हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, तो जरा सोचिए, हम दो कंडीशन आपको बताने वाले हैं, आप उसमें से बताओगे ट्रू कौन सा, मुझे रेस्पबेरी पाई से सिग्नल बोर्ड की तरफ भेजना है और बल्ब जला करके सिग्नल रेस्पबेरी पाई की तरफ लाना है, कौन सा कंडीशन ट्रू है, रेस्पबेरी पाई से बल्ब की तरफ कोई चीज भेजनी है या बल्ब ऑन करके रेस्पबेरी पाई पे इनपुट लेना है, हमें क्या करना है, कौन सा कंडीशन ट्रू होगा, फिर से ध्यान से सुनिए, हमें रेस्पबेरी पाई से एक आउटपुट बल्ब की तरफ भेजना है या बल्ब जला करके इनपुट रेस्पबेरी पाई पे लेना है, फ्रॉम आरपीआई टू बल्ब, फ्रॉम आरपीआई टू बल्ब, पक्का ना, तो देखो वही लिखा गया है, वही लिखा गया है 33 जीपीआईओ डॉट आउट, जीपीआईओ से एक सिग्नल आउट करिए 33 की तरफ, ठीक है, तो ये ग्रीन के लिए हो गया, एक सिग्नल मुझे और आउट करना होगा, एक सिग्नल और मुझे आउट करना होगा, किसके तरफ, 35 के तरफ, 35 के तरफ, दोनों में आउट लिखा, अगर आपको बल्ब जला करके इनपुट लेना हो तो आप लिखेंगे 33 जीपीआईओ डॉट इन, 33 जीपीआईओ डॉट इन, लेकिन हमें इन नहीं करना था, हमें आउट करना था, हमें दोनों हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, डन, इतना कोड समझ में आया, इतना कोड सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया, देखिए बहुत तरह की चीजें आप बना सकते हैं, मैं एक एग्जांपल छोटा सा आपको करके दिखा रहा हूं जिससे आपको प्रोग्रामिंग, रेस्पबेरी पाई, हार्डवेयर तीनों का आइडिया लग जाएगा, ठीक है, और सारे बच्चे जरूरी नहीं होते हैं कि सबको भगवान ने एक जैसा दिमाग दिया हो, ठीक है, 3 इडियट्स मूवी देखी थी आपने, 3 इडियट्स मूवी देखी थी आपने, उसमें था भाई आमिर खान को अलग स्ट्रेंथ थी और लोगों की अलग स्ट्रेंथ थी, समझ रहे हैं, तो सब लोग इसको समझने की कोशिश करें, चाबुक के डर से सर्कस का शेर भी उठना बैठना सीख जाता है, उसको वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं कहते हैं, आपसे कहीं ये नहीं पूछा जाएगा आप किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के पास आउट हो, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि आपको आईओटी आता है, आपको पाइथन आता है, आपको जावा आती है, आपने कितने एप्लीकेशंस बनाए हैं, ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, कॉलेज का नाम, आपकी स्टडी एक समय तक काम करेंगी, एक समय तक काम करेंगी, लेकिन आपकी टेक्निकली जो आप जितने साउंड हैं वो आपको अलग लेवल पे ले जाएगी, ठीक है, चलिए अब हमने 2 काम कर दिया, अब मुझे बताइए, प्रोग्राम आप समझ चुके हैं कि यूजर से 3 नंबर इनपुट मांगने हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर और सम सही आएगा तो ग्रीन, सम गलत आएगा तो रेड, पक्का, अगर मैं पूरा प्रोग्राम बना दूं और प्रोग्राम रन कराऊं तो दोनों में से कौन से बल्ब ऑन होंगे, जैसे ही रन करते वक्त, जैसे ही मैं प्रोग्राम रन कराऊंगा तो दोनों में से कौन सा बल्ब ऑन होना चाहिए, नो वन, कोई बल्ब नहीं जलना चाहिए, निशा, वसुंधरा, जरा सोचिए, ग्रीन पहले से जला दोगे इसका मतलब इनपुट का वेट ही नहीं होगा, समझ रहे हैं, तो आपको आपको दोनों बल्ब को ऑफ करना होगा प्रोग्रामिंग के थ्रू, आपको दोनों बल्ब को ऑफ करना होगा प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो आप देखिए ऑफ करने के लिए क्या लिखते हैं, जीपीआईओ डॉट आउटपुट, एक बच्चे ने लिखा भी है, आउटपुट 33 जीपीआईओ डॉट लो, हमने एक बल्ब को बंद कर दिया, हमने एक बल्ब को बंद कर दिया, किस बल्ब को, तो 33 नंबर वाले बल्ब को बंद कर दिया, 33 नंबर वाले बल्ब को ऑफ कर दिया, इसी तरह मैं रेड को भी बंद करूंगा, मैं
मैंने रेड को भी ऑफ कर दिया, मैंने रेड को भी ऑफ कर दिया। अब आता है प्रोग्राम का मेन लॉजिक कि आपको यूजर से 3 नंबर इनपुट कराने हैं। अब आपको यूजर से 3 नंबर इनपुट कराने हैं, तो हमने लिखा a इज इक्वल्स टू, एक वेरिएबल है, इंटीजर नंबर चाहिए, तो इंट इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू कैच इनपुट फ्रॉम यूजर। मैसेज क्या दिया, इंटर फर्स्ट नंबर। मैसेज आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, मैसेज आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। क्लियर, मैसेज आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। फिर हमने लिया b इज इक्वल्स टू इंट। मैं जान रहा हूं कि टाइम ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस होने वाला है। इंटर सेकेंड नंबर, 2 नंबर हमने मांग लिए। c इज इक्वल्स टू इंट, ये भी इंट में ही आएगा, इनपुट फंक्शन यूजर से वैल्यू मांगता है, इंटर सम। आप अपने हिसाब से मैसेज कुछ भी लिख लीजिए, डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिखा जाता है, डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिखा जाता है, आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। तो सी तक आ गए। अब मैंने लिखा, अब जरा बताइए सी में सही सम आया कि गलत सम आया? अभी तक जितना प्रोग्राम बना उसमें सी में सही सम आया या गलत सम आया? सी में सही सम आया या गलत सम आया? सोच के बताइए। यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट। डन। कोई उसमें सी में हमें पता नहीं कि सही सम आया या गलत सम आया, हमें बस इतना पता है कि सम आया होगा, तो हमें सही सम कैलकुलेट करना होगा, हमें सही सम कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, हमने सही सम डी में कैलकुलेट कर लिया, हमने सही सम डी में कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ये 2 चीजें पता है कि सी में इनपुट किया गया सम है और डी में सही सम है, डी में सही सम है, सी में इनपुट किया गया सम है। अब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, और कंपेयर करने के लिए इफ का यूज होता है, तो हमने लिखा सिर्फ इफ सी इक्वल इक्वल डी, इफ सी इक्वल इक्वल डी। यस यस अपूर्वा, बिल्कुल बना सकते हैं, टाइम मशीन भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही बना लोगे, आपको उसके लिए पहले छोटे छोटे एप्लीकेशंस डिजाइन करने होंगे, टाइम मशीन का लॉजिक लिखना होगा, समझना होगा कि कितनी चीजें टाइम मशीन को बनाने के लिए यूज होंगी। तो इफ सी इक्वल इक्वल डी, अगर सी की वैल्यू डी से मैच की तो कौन सा बल्ब ऑन कर दे? तो हमने लिखना होगा जीपीआईओ डॉट आउटपुट 33, ऑन करने के लिए क्या लिखें? जीपीआईओ डॉट हाई, जीपीआईओ डॉट हाई। क्लियर? हमने कौन सा बल्ब ऑन किया? हमने कौन सा बल्ब ऑन किया? ग्रीन को ऑन किया। अब मैंने लिखा स्लीप, कितने देर तक ऑन रखो, कितने देर तक ऑन रखो? स्लीप इज यूज टू डिक्लेयर डिले, ये डिले लाता है हमारे प्रोग्राम में। तो स्लीप जीपीआईओ डॉट आउटपुट 33 कॉमा जीपीआईओ डॉट हाई, हाई बल्ब ऑन हुआ, ग्रीन कलर का बल्ब ऑन हुआ, स्लिप में लिखा हमने 10 सेकेंड के लिए ऑन करो, फिर ऑफ कर दो। फिर ऑफ कर दो, इंडेंटेशन से बाहर आ जाओ, एल्स लिखो। आप देखें कि 3 लाइनें इफ के अंदर लिखी गई है, 3 लाइनें, वो जब इफ कंडीशन ट्रू होगी तब एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन जब फॉल्स होगी तो एल्स में हमारा कर्सर आता है, तो हमारा कर्सर एल्स में आता है। ये छोटी बेसिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक है, आपको पता होगा।
फिर हमने एल्स में रेड बल्ब को ऑन किया, स्लीप में लिखा 5 सेकंड तक के लिए जलाओ। स्लीप में जो भी टाइम पास होता है वो सेकंड्स में होता है। फिर हमने बल्ब को ऑफ कर दिया। सबको समझ में आ रहा है? सबको ये कंडीशन समझ में आ रही हैं? सबको ये कंडीशन समझ में आ रही हैं? सबको ये कंडीशन समझ में आ रही है? मैंने प्रोग्राम को सेव किया, प्रोग्राम को सेव करने जा रहे हैं। प्रोग्राम को सेव किया VIT2 और सेव कर दिया। प्रोग्राम VIT2.py से सेव हो गया। प्रोग्राम हमारा VIT2.py से सेव हो गया। ठीक है, अब जरा मैं इसको रन कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। रन मॉड्यूल, जैसे ही रन कराया हमारी स्क्रीन पे क्या मैसेज आया? हमारी रन कराने वाली स्क्रीन पे, विंडो पे, पाइथन के शेल पे क्या मैसेज आया? इंटर फर्स्ट नंबर मैसेज आ रहा है। इंटर फर्स्ट नंबर मैसेज आ रहा है। यस। और क्या दोनों में से कोई बल्ब ऑन हुए? देखिए तो, क्या दोनों में से कोई बल्ब ऑन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रोग्राम से बंद कर रखा है। मैंने दिया 5, मैंने दिया 5 गया ए में, मैंने दिया 5 गया बी में। 5 और 5 10 होते हैं, मतलब डी की वैल्यू 10 हो गई। अब मुझसे ये सम मांग रहा है, अब मुझसे ये सम मांग रहा है, तो सम मैंने दिया 10। तो क्या सी और डी बराबर हुए? क्या सी और डी बराबर हुए? बोलो, क्या सी और डी बराबर हुए? यस। तो यस, आपको ग्रीन बल्ब दिखा? आपको ग्रीन बल्ब दिखा जला हुआ? एक मिनट, कुछ जंपर वायर्स की प्रॉब्लम है। दिखेगा 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 दिखेगा, एक मिनट वेट करिए। एक मिनट, एक मिनट, बिल्कुल परेशान मत होइए। बिल्कुल एक मिनट मैं कनेक्शन कर रहा हूं। सर शायद मेरा आपने कैमरा ऑफ कर दिया है। सर शायद आपने मेरा कैमरा ऑफ कर दिया है। सर शायद आपने मेरा कैमरा ऑफ कर दिया है। रेहान सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है। सर प्लीज आप मेरा कैमरा ऑन कर दें। ऑन कर लीजिए आप सर। सर बहुत देर से कर रहा हूँ, ऑन नहीं हो रहा है। अब हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। एक मिनट प्लीज।
मैं फिर से प्रोग्राम को रन करा रहा हूं, मॉड्यूल को रन करा रहा हूं, मॉड्यूल रन हुआ। अब कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, अब कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने सेट वार्निंग को नहीं ट्रू किया था। डन। क्योंकि ये वार्निंग क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कनेक्शन को लूज नहीं किया है, कनेक्शन को हटाया नहीं है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ देखिए, इंटर फर्स्ट नंबर। अभी मैं इसका आपको वार्निंग का मैसेज बताऊंगा कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ देखिए, मैसेज आ रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। नीचे की तरफ मैसेज पढ़िए, मैं तब तक टाइप नहीं करूंगा। यस, हमने 5 इनपुट किया, दूसरा नंबर हमने फिर 5 इनपुट किया, तीसरा नंबर हमने 10 इनपुट किया। तो सी इक्वल इक्वल टी, तो सी इक्वल इक्वल टी, और जैसे ही इनपुट करेंगे आपको ग्रीन बल्ब ऑन होता दिखेगा। देखिए ग्रीन बल्ब ऑन हो चुका है, और ये कितने देर तक ऑन रहेगा ये देखिएगा, ये कितने देर तक ऑन था। आपने प्रोग्राम से इसको कंट्रोल किया है, पक्का 10 सेकेंड तक ऑन रहा, बहुत बढ़िया। मैं इस रन कराने वाले विंडो को फिर से ऑफ कर रहा हूं, आप देखेंगे मैं इस विंडो को ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम था, ये हमारा प्रोग्राम था, मैं फिर से प्रोग्राम रन करा रहा हूं, फिर से रन किया मॉड्यूल को, फिर से वार्निंग आएगी, फिर से वार्निंग आएगी, आने दीजिए वार्निंग। भाई साहब, वार्निंग का रियल मतलब क्या होता है? वार्निंग का रियल मतलब, वार्निंग की हिंदी मतलब बताएं, शाब्दिक अर्थ। तो वार्निंग का शाब्दिक अर्थ होता है धमकी। यू आर इन अ डेंजर। बिल्कुल अपूर्वा सही कह रही हैं, यू आर इन अ डेंजर। आप जो कर रहे हो वो कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन हम प्रोग्रामिंग में एरर और वार्निंग में डिफरेंस कहते हैं। एरर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देता है, एरर प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन को रोक देता है, वार्निंग रोकता नहीं है। वार्निंग कहता है ये गलती कर रहे हो, लेकिन ठीक है आप प्रोग्राम रन करा सकते हैं। ठीक है, फिर से मैंने दोबारा नंबर दिया 5, दोबारा नंबर दिया 5, मतलब ए और बी की वैल्यू 5 हो गई, और सी की भी वैल्यू मैंने 5 दे दी, सी की भी वैल्यू मैंने 5 दे दी, सी की भी वैल्यू मैंने 5 दे दी। तो इफ डी इक्वल इक्वल सी, क्या सी की वैल्यू डी के बराबर है? नहीं बराबर है, नहीं बराबर है, तो कौन सा बल्ब जलना चाहिए? तो कौन सा बल्ब जलना चाहिए? रेड बल्ब। देखिए रेड बल्ब आपकी स्क्रीन पे जल रहा होगा, और ये थोड़ी देर तक जलेगा, क्योंकि इसमें आपने कितना टाइम का डिले पास किया था? कितने टाइम का? 5 सेकेंड का डिले पास किया था। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना सीख जाए, छोटे छोटे हार्डवेयर को कनेक्ट करना सीख जाए, अब इसी से आप सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हैं, इसी से आप मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, इसी से आप अपना कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं कि इसके लिए हम सब लोग पाइथन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि पाइथन में डायरेक्ट डेटा टाइप का कोई डिक्लेरेशन नहीं होता है, और हम बहुत बड़े एक इमेज को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ करके एक जगह स्टोर कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन में ही पॉसिबल है, एक इमेज के बहुत सारे छोटे छोटे कोऑर्डिनेट को स्टोर करना। एंड दैट्स व्हाई हम पाइथन को इमेज प्रोसेसिंग के लिए भी यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, बहुत सारी नहीं भाई, बहुत सारी लैंग्वेज है, आर लैंग्वेज है, आर लैंग्वेज है, आप आर लैंग्वेज कर सकते हैं। पाइथन की खूबसूरती ही यही है। पाइथन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है कि आप आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन, आपने देखा एक छोटा सा मैंने रेस्पबेरी पाई से आपको एग्जांपल कराया, तो आप ऐसे तरीके के एप्लीकेशंस भी डिजाइन कर सकते हैं। अब अगली स्क्रीन पे मैं अपने नोटपैड को एक्सेस कर रहा हूं, और नोटपैड पे मैं अपना आपको
नंबर लिख दे रहा हूं कि आपको जिस भी मैं आपको अभी आपके कॉलेज वाले जो सर हैं उनको मैं रेहान सर को बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भेज दूंगा जहां पे जाकर के आप अपने आइडियाज को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जहां आप अपने आइडियाज को, आप अपने प्रोजेक्ट को कॉपीराइट ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। बट आपको वहां प्री डिफाइंड पहले से बहुत सारे रजिस्टर्ड लिंक्स पड़े होंगे, बहुत सारे आइडियाज पड़े होंगे। आपका आइडिया सेम नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक छोटी सी ओके और एक छोटी सी मैं उसमें आपको आईओटी की एक छोटी सी गाइड भेजूंगा जिसमें थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग होगी, बहुत थोड़ी बहुत जिसमें कि आपको उसमें मदद मिलेगी कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन आप अपने रेहान सर से मेरा नंबर ले सकते हैं, आप रेहान सर से मेरा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, रेहान सर के पास मेरा नंबर है। ठीक है, तो आप जुड़े रहें, कनेक्ट रहें हम लोगों से, अपने कॉलेज में बात करें। और भी तरह के आप अगर चाहते हैं कि आईओटी बेस्ड, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आपको 2-4 दिन का टाइम लगेगा, आप एक लाइव हमारे साथ एक और प्रोजेक्ट बना सकते हैं। रेहान सर, थैंक यू। मेरी तरफ से सेशन क्लोज हो रहा है, तो आप अपने स्टूडेंट से एक बार बात कर लें। थैंक यू आशीष, यश, प्रदीप, थैंक यू। रोहित सर, यस सर, मेरी आपकी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा क्वेश्चन तो हमें लगा सर मैक्सिमम स्टूडेंट ने बीच में ही पूछ लिया था। जी लगातार। हाँ, लगातार पूछ लिया था तो। और सर फीडबैक्स भी आ रहे हैं उस पे, आप चैट बॉक्स में देखें। अच्छा रहा सेशन सर, बहुत अच्छा रहा सेशन। तो आईओटी पे सर ये हम लोग अगर अच्छा आगे काम करना चाहते हैं तो रेस्पबेरी पाई पे बच्चों को काफी बार रेस्पबेरी पाई सीखना पड़ेगा। रोहित सर, वॉइस आ रही है? एक क्वेश्चन सर और एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है फिर हम लोग एंड करते हैं, एवीआर मॉड्यूल के बारे में। रोहित सर, रोहित सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए सर, ऑप्शन दे दिया आपको, वीडियो रोहित सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, वो सर इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम्स शायद आ रही हैं जिसके कारण मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। तो काफी अच्छा लगा सर स्टूडेंट से मिलकर, और हम आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वेबिनार्स, वर्कशॉप्स प्लान कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें क्या होता है कि अगर बच्चों के पास भी डिवाइसेस हो ना, तो हम साथ साथ कोई कनेक्शन करके साथ साथ कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। क्योंकि और सर हम लोग वेबिनार काफी अच्छा रहा सर, थैंक यू टाइम देने के लिए। और हम लोग सर आगे
कोशिश करेंगे कि अभी लॉकडाउन के बाद फ्यूचर में आपको इनवाइट करेंगे, अगर आपके पास समय रहेगा। कॉलेज में हम लोग सर इस तरह का कुछ कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये जो सेशन होना चाहिए ना, मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताऊंगा ऑनलाइन कि में बहुत सारी चीजें आप तो दिखा दे रहे हैं, मतलब बच्चे करके देखेंगे, ऑफलाइन बच्चे में नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो हम इस पूरे सेशन को सर पूरे डे वाइज 3-4 दिनों का प्लान कर सकते हैं, जिसमें बच्चे पहले थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीखें, फिर उनको रास्पबेरी पाई को कंट्रोल करना सिखाएं, और लास्ट दिन हम एक एप्लीकेशन बनाना सिखाएंगे जिसमें बहुत सारी साइट्स थिंकस्पीक वगैरह के क्लाउड को यूज करके दिखाएंगे। अभी मैं तो लॉग इन कर लेता AWS पे, लेकिन बच्चे लॉग इन नहीं कर पाते, उनका अकाउंट नहीं होता वहां पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन रहा, और काफी जो है आपने डिटेल में 2 घंटे के अंदर सारी चीजें बेसिक आइडिया दे दिया है। इस पे आगे हम लोग काम कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट भी कर सकते हैं। और हम लोग सर IoT पे काफी कुछ कर रहे हैं, लैब भी अपने वहाँ हम लोग सेट कर रहे हैं। और आगे हम लोग, और जो आपसे जो हमें आइडिया मिला है बच्चों को, और मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट इस पे आगे, सर का जो है लेक्चर, जो भी आपने चीजें सीखी इस पे आगे आगे बढ़ के और आगे काम करिए। बहुत कुछ सीखने के लिए IoT में। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सर।